Assalamu alaikum students. Today we will be discussing some really important things about electricity generation, how electricity is being generated. So the very first thing that we are going to cover in this lecture is generators. So why generators are important? Because generators are most important devices that are being used to generate electricity. So generator is basically a device that is basically using any kind of energy. We will be discussing energy sources later in this lecture. So they use energy to generate electric currents. So in the basic construction of electric generators, there is basically a moving magnet that is used to generate electricity. So basically, energy which is being used to move the magnet is carried by electric current. So the basic working principle of generators is Faraday's law of electromagnetic induction. So basically होता क्या है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सिर्फ तीन चीजें रिक्वायर्ड है. फर्स्ट वन, आपको एक मैग्नेट रिक्वायर्ड है. सेकंड, आपको एक कंडक्टर रिक्वायर्ड है. ये दो चीजें हो गई. द थर्ड वन इज रिलेटिव मोशन ऑफ दिस कंडक्टर and magnet. Either you can move the conductor to generate electricity or either you can move the magnet to generate electricity. दोनों में जैसे ही आपके पास एक relative motion start होगी, दोनों की जब relative motion का मतलब है या तो कंडक्टर को स्टैटिक रखें अपने मैग्नेट को मूव करें या मैग्नेट को मूव करें कंडक्टर को स्टैटिक रखें. इन ईदर केसेस आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. तो होगी कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है कि रिलेटिव मोशन की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. सो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. आपका मूवमेंट की वजह से फ्लक्स जो है वो इट स्टार्ट चेंजिंग. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज basically responsible to generate voltage, which we call induced voltage. As a result of that induced voltage, हमारे पास induced currents develop होते हैं. So this is basic working principle of generators. ठीक है. So माइकल फेरेडे ने जनरेटर इन्वेंट किया था in 1831 basically. So the question here is why do we need to make a generator for a power station? Because in generator we are having strong magnets. We use lots and lots of wires as the conductors. और जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था कि the third most important thing is relative motion between that magnet and that conductor, which is written as lots of wire here. So, जैसे ही दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है आपके पास करंट्स डेवलप होना शुरू हो जाता है. इन ऑर्डर टू मूव दैट conductor or in order to move that magnet we will be requiring energy to turn the generator on. uh, Generators are basically used in factories, homes and schools where we need lots of energy. Right now electricity is being used everywhere, like homes, schools, offices, factories. So these generators are being used in power stations and they are used to generate lots of energy. And the generators that we are using in these power stations that are generating electricity by using different forms of energy, these generators are called power generators. ये बहुत ह्यूज जनरेटर्स होते हैं, लाइक जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है. ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करनी होती है जो कि बहुत आपके फिर आगे यूज होती है, आपके कंज्यूमर तक पहुंचती है. तो बड़े जो जनरेटर्स होते हैं दे, अगर वो बहुत ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो एट द सेम टाइम दे विल बी रिक्वायरिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी. So this energy is basically using to turn on the generators. This energy is basically converting into electrical energy. Either आपके पास सोलर आप एनर्जी ले रहे हो, आप विंड ले रहे हो, आप फ्यूल से चला रहे हो, whatever form of energy you are being using, this energy is producing electrical energy at the output. So electric current basically carries the energy to wherever it is needed. So different forms of energy are being utilized, like steam can be used to turn the turbine on.
टर्बाइन जब आपके पास रोटेट करते हैं तो ये डायरेक्टली जो आपके जनरेटर्स के कंडक्टर्स होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं, उसके साथ ये कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये टरबाइन जो है ये रोटेट करते हैं, आपके पास जनरेटर्स में फ्लक्स चेंज होता है, और वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो आपके पास वोल्टेजेस इंड्यूस करवा देता है, जैसा कि आपकी स्लाइड में एनिमेशन के फॉर्म में आपको बताया हुआ है। So, a generic power station scheme has been shown in this slide, where, as you can see, that in this particular case, we are using some kind of fuel that is basically burning. जैसे फ्यूल आपके पास बर्न होता है, आपके पास आपने पानी लिया होगा, ठीक है, वाटर रिसोर्स चाहिए आपको अपने पावर स्टेशन पे। पानी जो है वो जैसे ही बॉयल होता है, स्टीम का जो भी प्रेशर है वो यूज होता है इन ऑर्डर टू टर्न द जनरेटर ऑन, और फिर आगे आप ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट अपने कंज्यूमर तक पहुंचाते हो। The question is how can water be heated to make the steam? Now the question is, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि पानी यूज होता है, उससे स्टीम बनती है। स्टीम का जो प्रेशर है टरबाइन को रोटेट करने में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन हियर इज कि पानी को हीट कैसे किया जाए। अगेन वी विल बी रिक्वायरिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी, some kind of burning process that will eventually heat your water. स्मोक जो है वो आपके पास डर्टी होती है, आपकी एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है। तो एक तरफ आप एनर्जी क्रिएट तो कर रहे हो, बट एट एक्सपेंस ऑफ पोल्यूटिंग योर एनवायरनमेंट। गैस जो है, अगर आप कोल यूज करेंगे तो उससे पोल्यूशन थोड़ी ज्यादा क्रिएट होगी, ठीक है। गैस जो है उससे थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा एक क्लीनर जो है ना वो प्रोसेस है, बट इवेंचुअली कंबशन प्रोसेस उसमें भी हो रहा है। At the end of the day, the world will run out of coal and gas. This coal and gas has fixed reservoirs, ठीक है। ये आपके पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। आप इनको जितना यूटिलाइज करते जा रहे हो, ये वक्त के साथ साथ खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। स्टीम जो है आपकी न्यूक्लियर एनर्जी से भी आप बना सकते हो। न्यूक्लियर रिएक्टर्स दे कैन बी यूज्ड टू स्प्लिट एटम्स, और उसमें जो आपके पास यूरेनियम के रिएक्शंस होते हैं, फिशन रिएक्शंस होते हैं, दे रिलीज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी एज दीस फिशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड टू बॉयल द वाटर, ठीक है। पहले आपने कोल यूज करके जो है उसको बर्न करवा के पानी को हीट किया। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी भी ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि जब आप न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर रिएक्टर में आपके पास फिशन रिएक्शंस होते हैं बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ एटॉमिक फ्यूल लाइक यूरेनियम, उससे भी चूंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, दे आर बीइंग यूज्ड टू रिलीज लॉट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एट द एंड उससे स्टीम बनती है और जनरेटर जो है दे टर्न ऑन, ठीक है। दिस डज नॉट कॉज पोल्यूशन, ओके, ठीक है। ये मसला हमारा जो है वो सॉल्व हो गया। अनलाइक कोल में हमारे पास बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रही थी, बट in case of nuclear reaction some waste is very dangerous। वो जो आपके पास बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी रेडिएशन एमिट करते हैं, एंड दे नीड टू बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली, ठीक है। उसको आपने बहुत केयरफुली जो है वो डंप करना होता है, अदरवाइज वो बहुत हार्मफुल होते हैं। Second method to heat that water which is converting into steam, and that eventually that steam is turning on the generators. Another form of energy that you can get is steam from earth. As we all know that temperature inside core of earth reach up till 7,000 degree centigrade। जैसे जैसे आप डिगिन करते हो अर्थ के, तो अर्थ की कोर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। दिस टेम्परेचर can be used in order to heat the water, and this is basically a form of energy which can be used to generate electricity, and this kind of energy is called geothermal energy. So in some countries there are hot rocks that are close to surface of earth। अब कुछ कंट्रीज में उसकी उसकी ऐसी है, लोकेशन ऐसी है कि उसके जो हॉट रॉक्स हैं वो उसकी अर्थ की सरफेस के करीब आपको मिल जाते हैं। सो ऐसी जगहों पे हम जियोथर्मल एनर्जी यूज करके वाटर को हीट अप कर सकते हैं। सो ये एक पिक्टोरियल फॉर्म में आपको बताया हुआ है, एक स्टेशन है जहाँ पे
आपका पूरा सेटअप है जिसमें आप अर्थ की एनर्जी को यूटिलाइज करके वाटर को हीट करते हैं। उसकी वजह से स्टीम बनती है, और स्टीम जो है वो इन टर्न आपके पास यूज होती है इन ऑर्डर टू टर्न द टर्बाइंस ऑन। In some countries, energy from earth can be used to boil water to turn generators. अब इससे pollution भी नहीं होती है, और and this will not run out unlike coal and gas reservoirs. But it is not an option in the UK and many other countries, क्योंकि बहुत सी जगहों पे सरफेस के करीब करीब आपको हीट नहीं मिलती है। आपको बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है इन ऑर्डर टू हीट दैट वाटर। सो हर जगह पे ये हम जो है वो यूटिलाइज ये वाला ऑप्शन नहीं कर सकते। Next option is electricity generation from waste. So vegetation and animal dung give off energy as they rot. ठीक है, जैसे जैसे वो rot करते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं। This energy can also be used to heat homes and greenhouses directly. ये इस वेस्ट को भी आप बर्न कर सकते हो in order to boil water, in order to make steam and to turn the generators on. सो द प्रोसेस यूजेस अ वेस्ट। अब वेस्ट तो ठीक है, आपके पास वेस्ट कंज्यूम हो रहा है, एक चीज जो ऑलरेडी वेस्ट थी जिसने वैसे भी वेस्ट हो जाना था उसको आप यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। बट द ओनली इशू इज पोल्यूशन। इट प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इन टर्न्स pollute your environment. The question is how else can we turn a generator on without polluting the earth? ठीक है, जो जो अभी हमने ऑप्शंस देखी हैं उसमें मोस्टली ऑप्शंस ऐसी थी जिससे जो आपकी अर्थ है वो पोल्यूट हो रही थी। ठीक है, और उससे पूरा इकोसिस्टम और वो सारा साइकिल आपका खराब हो रहा था। और मतलब आपकी इन्वायरमेंट, आप एनवायरमेंट को पोल्यूट करोगे, उसकी वजह से जो हेल्थ कंसर्न्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, वो अलग होना शुरू हो जाएंगे ओवरऑल, और बहुत सा इकोसिस्टम जो है ना वो उसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। सो अनदर वेरी वेरी गुड ऑप्शन is using the flow of water, using the potential energy of water by storing water at an high height, और फिर हम उसको हाइट से स्टोर करवा के उसका उसको हम फ्लो करवाते हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जब बहुत ज्यादा हाइट से एक बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ मूव करता है, उसकी वजह से आपका टरबाइन रोटेट करता है और आपके जनरेटर्स ऑन हो जाते हैं। दिस इज द मोस्ट cheapest form of generating electricity. This is the most cleanest form of generating electricity, has been used and has been preferred worldwide. ओके, सो जिसको हम कहते हैं, मतलब इसको वाटर को स्टोर करने का और वो सारा इस सारे प्रोसेस को हम डैम कहते हैं। एक डैम क्रिएट किया जाता है। ठीक है, किसी भी बड़े वाटर रेजर्वोयर के ऊपर आप एक डैम क्रिएट करते हो और वहां पे फिर आप पानी एक हाइट पे स्टोर करते हो। ठीक है, और जैसे जैसे पानी एक हाइट से गिरता है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। एंड वी ऑल know that formula of kinetic energy is half mv square mass into velocity का स्क्वायर। ठीक है, तो वो जैसे जैसे उसकी वो गिरता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और जैसे वो हिट करता है आपके टरबाइन को, आपका टरबाइन रोटेट करता है। Hydroelectricity. So the energy that we are creating by using water, this kind of energy, this form of electricity is called hydroelectricity. The energy that we are getting from water is called hydro energy. Okay, so in hydroelectricity, running water turns on the generator, and I already explained how running water turns the generators on by falling from a very high area. As you can see that this is a water reservoir, okay, and you have created a dam here. So a brief diagram of hydroelectricity being generated from water has been shown in this picture. From the penstock, you are taking intake water. You have also created a small powerhouse here at this point. In the powerhouse, devices like generator and switchgear have been installed.
और जैसे यहाँ से प्रेशर से पानी आता है, यहाँ पे आपका टरबाइन लगा हुआ है, शाफ्ट ऑफ द टरबाइन लगा हुआ है, उस प्रेशर की वजह से वो रोटेट करता है, और यहाँ पे जो जनरेटर है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, और फिर आगे ही इसका ट्रांसमिशन लाइन के साथ कनेक्शन होता है, और ये जो पानी है ये वापस रिलीज हो जाता है आपके वाटर रिजर्वोयर में। सो इस तरह से इसमें आप की जो रनिंग कॉस्ट है वो कम से कम होती है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, रोजाना की डेली मेंटेनेंस कॉस्ट कम से कम है, पोल्यूशन इसमें जीरो है। इट इज चीपेस्ट फॉर्म ऑफ जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बट ये है कि इसकी इनिशियल कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, डैम बनाने में ऑब्वियसली आपका बहुत ज्यादा एक्सपेंस आ जाता है, बहुत ज्यादा उसमें फाइनेंशियल आपके पास बर्डन हो जाता है, बट एट द एंड जब एक दफा बन जाता है, कैपिटल कॉस्ट ऑब्वियसली इसकी ज्यादा होती है, बट आफ्टरवर्ड उसकी जो रनिंग कॉस्ट है और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम से कम हो जाती है। इट डज नॉट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। डैम मस्ट बी हाई इन माउंटेन्स। अच्छा, हाई जो इन माउंटेन्स के पास ना, ये है कि वहां पे भी आपको एक एडवांटेज हो जाता है, जैसे रन ऑफ रिवर्स होते हैं, तो आप रिवर तो जा रहे हैं अपने फ्लो में, आप उसके ऊपर एक डैम क्रिएट कर दो, उसकी वजह से भी वहां पे और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज एनर्जी फ्रॉम वेव्स। एनर्जी फ्रॉम वेव्स कैन ऑल्सो बी यूज टू टर्न ऑन दी जनरेटर्स। अब हमारे पास देखें, आपकी अर्थ पे 30% लैंड है, 70% वाटर है, और आपके पास जो ओशंस हैं और सीज हैं उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, दे आर वेरी एनर्जेटिक, दे कैरी हेवी अमाउंट्स ऑफ एनर्जी विद देम। और अगर हमारे पास प्रॉपर ऐसा सेटअप हो कि हम इस पे प्रॉपर इन्वेस्ट करें, इस पे प्रॉपर फोकस करें, तो अकेली वेव्स ही काफी हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी टू होल वर्ल्ड। ओके, सो ये वेव्स जो हैं ये, इनमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, टाइडल एनर्जी जिसको बोलते हैं, जब इसमें टाइड्स क्रिएट होती हैं उसकी वजह से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी फ्रॉम विंड। वी कैन यूज विंड ऑल्सो नेचुरली, जो आपके पास विंड्स फ्लो करती हैं, स्पेशली जो आपके पास कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ पे हवा बहुत ज्यादा चलती है, तो अगर ऐसा सा सेटअप हो, ऐसी कोई विंड मिल हो, ये जस्ट आपको एक जो है वो दिखाया हुआ है, एक कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है कि इस तरह का अगर आपके पास सेटअप हो विंड मिल का, और जैसे ही हवा आएगी तो उसकी वजह से ये जो है ये घूमना शुरू कर देता है, इसका नीचे से अगर शाफ्ट टरबाइन के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो टरबाइन भी इवेंचुअली रोटेट करेगा। So when you are using moving air that basically pushes the blades down, this is how we can get energy from wind also. So wind can also turn on generators. Many years ago, windmills are used to turn milestones, millstones होते हैं, उनको ग्राइंड करने के लिए यूज होती थी। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। अब मॉडर्न जो विंड टर्बाइन्स हैं ये बेसिकली जनरेटर्स को जनरेट करने के लिए यूज होते हैं। इससे इसका फायदा क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द विंड? इट डज नॉट पोल्यूट एयर। विंड जो है इट इज नॉट यूज्ड अप। देखिए, विंड जो है एक नेचुरल फिनोमिना है, पहले हम इसको यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम इसको यूज करके इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, बट द ओनली डिसएडवांटेज इज समटाइम्स विंड डज नॉट ब्लो। सो उस केस में जो है वी आर हेल्पलेस। उस केस में फिर आपके पास अगर वो विंड नहीं होगी तो वो आपके पास वो आपके जो टरबाइन्स हैं वो नहीं घूम सकती हैं। ठीक है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि ये एक इतना रिलायबल प्रोसेस नहीं है, बस जब विंड है तो तब आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एनर्जी फ्रॉम सन, दैट इज बेसिकली कॉल्ड सोलर एनर्जी। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो अर्थ तक आती है और जिसको हम यूटिलाइज नहीं करते, सो इट इज ऑल्सो अ वेरी क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें भी यही डिसएडवांटेज है कि जब आपके पास मौसम ऐसा होता है जहाँ पे क्लाउडी वेदर हो जाता है या रेनी वेदर हो जाता है, उसमें फिर सन की और सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं होती उस तरह से, तो इन दैट केस जो है वो पॉसिबल नहीं है। बट अदरवाइज जो बहुत ज्यादा ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है और सनी एरियाज होते हैं, वहां पे हम सोलर एनर्जी को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। Solar cells are being widely used worldwide in order to generate electricity. Solar cells are being employed at homes. They are being used in offices, in organizations, in schools, in colleges and universities. Rooftops पे आपके ऊपर लगे हुए हैं and they are generating.
इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा छोटे छोटे सोलर सेल्स हैं जो आपकी वॉचेस में भी यूज होते हैं। फिर आप इसको सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हो ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर, डिफरेंट जो ओपन एयर में आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वहां आप यूज कर सकते हो, ताकि सनलाइट को यूटिलाइज करते हुए आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो। इसमें आपको कोई जनरेटर रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ सनलाइट, ठीक है। इसके लिए एक ही चीज जिसकी जरूरत है, दैट इज लॉट्स ऑफ सनलाइट। स्पेस स्टेशन जो है वो, चूंकि जो आपकी सन की रेडिएशन है दैट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हर जगह जा रही है, तो बड़े बड़े जो स्पेस स्टेशन हैं उनके ऊपर बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो कि आपके पास सन की एनर्जी को कलेक्ट कर रहे हैं। दे आर मेकिंग इट पॉसिबल फॉर साइंटिस्ट जो कि बाहर रहते हैं और एक्सपेरिमेंट्स इस चीज पे करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, उनको एनर्जी जो सप्लाई करती है सन, उसका एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसमें इस तरह से बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, और जितने भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैं वो इन्हीं पैनल्स को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मेकिंग इट पॉसिबल एंड इजी फॉर साइंटिस्ट टू डू एक्सपेरिमेंटेशन। ऑलमोस्ट दिस फ्रेमवर्क इज 109 मीटर्स लॉन्ग, जो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है। Fusion reactions. So the question is, what what chemical reaction is causing the sun to produce unlimited, infinite, huge amount of energy? That is basically a fusion reaction. Fusion reaction is also an exothermic reaction. ये basically हाइड्रोजन reactions होते हैं, और ये हाइड्रोजन रिएक्शन अगर एक दफा स्टार्ट हो जाए तो ये जो है इनफाइनाइट टाइम के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसा कि सन हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बट द ओनली इशू इज कि हम आर्टिफिशियली फिलहाल टिल नाउ फ्यूजन रिएक्शन नहीं कर पाए। क्यों? बिकॉज पहली वजह तो ये है इसकी कि फ्यूजन रिएक्शन को क्रिएट करवाने के लिए भी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं हुई। दूसरा सबसे बड़ा इसकी लिमिटेशन ये है कि as we all know that once fusion reaction has started, we are still unable to find method to stop this fusion reaction. Okay, so these fusion reactions are basically making the sunshine. Scientists are still finding ways to get huge amounts of energy. So when small atoms are joined together, basically energy is given out like the sun. ठीक है, ये बिल्कुल फ्यूजन रिएक्शन में यही होता है कि दो छोटे एटम्स को हम कंबाइन कर देते हैं, एनाइलेट कर देते हैं, जो कि हमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देती है। और ये इतनी इनफाइनाइट एनर्जी होती है कि खत्म भी नहीं होती है, और इससे एयर भी जो है वो आपकी पॉल्यूट नहीं होती है। तो अभी तक तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप फ्यूजन रिएक्शन हम कैरी आउट नहीं करवा सके आर्टिफिशियली। कमिंग टूवर्ड्स एनर्जी रिसोर्सेज, सो अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात की जाए तो हमारे पास कोल, गैस और ऑयल है, दैट इज बीइंग यूज्ड from last many decades. But the issue is that this coal, gas, and oil has been creating lots of pollution, and at the expense of we are getting energy, we are getting huge amount of energy from coal, gas, and oil, but at the expense of destroying our environment. So we we are trying to shift to renewable energy resources. Such renewable energy resources does not cause any kind of combustion, does not cause any kind of pollution, and they do not run out also. Like, for example, hydroelectricity. Some of the limitations are also being written here, but these are some of the clean form of energy that we are preferring these days, and we are shifting from coal, gas, oil to hydroelectricity, wind, waste, sunlight, geothermal, and winds. But each form of energy has a limitation also. Like, for example, for hydroelectricity, we will be requiring mountainy areas. Wind energy or the electricity that we generate by using wind, it only works when wind is blowing. Waste, the limitation of waste is that it causes pollution, okay, and greenhouse gases, which are destroying our environment, which are destroying the ozone layer. Sunlight has sunlight. If you're using sunlight for generating electricity, the only limit is it works best
sunny countries. But for countries which are on the colder side, और सनलाइट जहाँ पे इतनी नहीं होती है, ठीक है, और वहां पे फिर ये इशू है, वहां ये लिमिटेशन हम नहीं कर सकते। जियोथर्मल में भी मैंने आपको बताया सिर्फ उन्हीं कंट्रीज में यूज होती है जिसमें सरफेस के करीब करीब आपके पास ना हॉट स्टोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आप इसको डीप जो है हम इसको नहीं कर सकते ना, डिगिंग नहीं कर सकते। वेव्स जो है वो स्मॉल स्केल के लिए सो फार यूज हो रही है। वेव एनर्जी जो आप टाइडल एनर्जी जो हमें वेव से मिल रही है, इट हैज लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। आई थिंक इन कमिंग ईयर्स वी विल बी फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन टाइडल एनर्जी, ठीक है। एक तो ये है कि वो टाइड्स की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अभी तक इस तरफ इतना एक्सप्लोर नहीं हो रहा। ज्यादा सोलर पे और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे और कुछ विंड इलेक्ट्रिसिटी पे जो है ना वो ज्यादा चीजें एक्सप्लोर हो रही हैं, बट टाइडल एनर्जी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर में हमारे पास फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस आते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि फिशन का जो वेस्ट है उसको बहुत केयरफुली हमें हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। बहुत केयरफुली हमें उसको जो है वो डील करना पड़ता है। बहुत एक स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जहाँ पे हम ये फिशन का न्यूक्लियर रिएक्शन का वेस्ट जो है वो डंप ऑफ करते हैं। फ्यूजन में वेस्ट जो है थोड़ा लेस डेंजरस होता है, बट फ्यूजन जो है अभी तक ये फ्यूजन रिएक्शन कैरी आउट नहीं हुआ, बिकॉज अगर आप फ्यूजन रिएक्शन को देखो तो आउटपुट पे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। फिलहाल कोई ऐसा मेथड नहीं आया कि इन सच शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इतनी ज्यादा एनर्जी आप कैसे हैंडल करो। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दूं, स्टार्ट हमने किया था जनरेटर से। अ जनरेटर इज अ डायनामिक डिवाइस that generates electric current by moving magnets near a coil of wire, or by moving coil of wires near magnets. It's up to you कि हम कैसी कंस्ट्रक्शन करते हैं जनरेटर की। In any case, relative movement is absolutely a necessity. Okay, so उसके बगैर तो ये नहीं हो सकता। हमें जनरेटर को जो है वो टर्न ऑन करने के लिए एनर्जी रिसोर्स चाहिए। वो जो एक रिलेटिव मोशन है बिटवीन मैग्नेट एंड कंडक्टर, उसके लिए, उस वजह से फिर मैं हम आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस किस टाइप की एनर्जी रिसोर्सेज हैं और हर एनर्जी रिसोर्स का जो है वो क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। either you can burn fossil fuels, either you can go for nuclear reactions, or either you can go for renewable energy. It depends कि आप किस चीज को जो है वो प्रेफर करते हो, कौन सी चीज जो है वो फाइनेंशियली भी आपके लिए प्रेफरेबल है, ये आपको चूज करना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नाउ आई वांट कि आप लोग जो है क्वेश्चंस पूछें। पहले तो क्वेश्चंस पूछें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं पहले उसको आंसर करूंगी, देन हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन प्लीज। मैम क्या हम ये जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उस पर पूरा कंट्री क्या हमारा चल सकता है अगर हम बाकी रिसोर्सेज को यूज ना करें? एक्चुअली सो कमिंग टुवर्ड्स रीन्यूएबल एनर्जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दो टाइप्स ऑफ बेटे एनर्जीज होती हैं, या आपके पास रीन्यूएबल एनर्जीज होती हैं या आपके पास नॉन रीन्यूएबल। नॉन रीन्यूएबल पे तो ऑलरेडी हम रिलाई कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल यूज हो रही है, बट दे आर कॉजिंग पोल्यूशन। रीन्यूएबल एनर्जी में बेटे बिल्कुल कैपेसिटी है अगर हम अपना, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ठीक है। रीन्यूएबल एनर्जीज का प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो है कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल आप यूज कर सकते हो, बट आपको इसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। और इससे इलेक्ट्रिसिटी तो आप बहुत ज्यादा जनरेट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो हमें ये इनिशियल कैपिटल कॉस्ट रिक्वायर्ड है ये बहुत ज्यादा। उसमें अब विंड और सनलाइट का क्या प्रॉब्लम हो जाता है, विंड और सनलाइट का ये है कि हवा हर टाइम नहीं चल रही है तो बिजली मिलेगी, नहीं चल रही तो नहीं मिलेगी। सनलाइट का भी ये है, दिन के टाइम तो चलो ठीक है, शाम में और रात में प्रॉब्लम हो जाती है। स्टोरेज आप बैकअप रखो भी अपना, तब भी सम टाइम जो है, देखिए मौसम आपके कंट्रोल में नहीं है, हवा आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, क्या, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप उस पर कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो? ओ मैडम, नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो चीज हमें 24 आवर्स अवेलेबल नहीं है, हम कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। बट यस,
हम ये कर सकते हैं कि हम जो है वो हाइब्रिड मोड में चले जाएं। कुछ हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज करें, ठीक है, और लेकिन ये है कि फॉसिल फ्यूल्स को फिर हम तभी यूज करें जब हमारे पास विंड और सनलाइट ना हो, ठीक है। तो हम कंप्लीटली जो है वो इनके नहीं ट्रांसफर हो सकते। ये एक सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है। कंप्लीटली हम रिलाय उस चीज पे कर सकते हैं जो चीज टोटली हमारे कंट्रोल में है। वी कैन नॉट कंट्रोल द वेदर, वी कैन नॉट कंट्रोल द सनलाइट, ठीक है, डे और नाइट वाला हिसाब है, तो इसलिए हम कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हो सकते। अब मेरा बच्चों से ये क्वेश्चन है कि ये तीन ऑप्शन हमने पढ़ी हैं, तीन कैटेगरीज पढ़ी हैं। या तो आप फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर सकते हो, या न्यूक्लियर रिएक्शंस की ऑप्शन है, या रिन्यूएबल एनर्जी की ऑप्शन है। तीनों में से कौन सी ज्यादा प्रेफरेबल है और क्यों, वाई? बारी बारी आंसर कर सकते हैं आप लोग। जिस तरह अगर देखा जाए, अब हम रिन्यूएबल एनर्जी को हम 24 आवर्स के लिए तो इस्तेमाल कर भी नहीं सकते। अगर हम देखा जाए, जिस तरह सोलर हम्म एनर्जी है, वो जब हमारे पास हम्म सनशाइन होगी वो तब हम यूज कर सकेंगे। तो हम्म प्रेफरेबल तो हम्म हमारे पास यही है कि हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज करें। लेकिन हम्म, उसके भी ड्रॉबैक्स ये हैं कि उनको उनकी भी एक लिमिट है, एक सर्टेन अमाउंट तक हम उसको यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ऑन आप बेटे, आप इसको आंसर कर सकते हैं। तीनों फॉर्म्स में से आप कौन सी प्रेफर करेंगे और क्यों? ऑन, आपको आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। मैम मेरे ख्याल में ये फॉसिल फ्यूल्स ठीक है, वाई? रीजन रिन्यूएबल एनर्जी दीजिए। की। फॉसिल फ्यूल, यस fossil मैम। fuels are preferable in your point of view. Can I ask why? Can you explain any advantages of using fossil fuels over other? What are the advantages of using fossil fuels over other energy resources? मैम क्योंकि इनकी अमाउंट ज़्यादा है, और दूसरी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी जिस तरह में 24 घंटे अवेलेबल नहीं होता, तो इस वजह से ये फॉसिल फ्यूल उसकी निस्बत बेहतर है। ओके, चलें, दैट्स ग्रेट। अगर किसी और का कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? चलें, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।